today we are going to discuss John Milton's sonnet on his blindness. So the other day I told you about the specific features of Miltonic sonnet. Do you have any idea about the rhyme scheme of Miltonic sonnet? You have forgotten the rhyme scheme of Miltonic. There are two types of sonnets, English sonnet and Petrarchan sonnet or Italian sonnet. Milton writes Italian sonnets and Shakespeare English sonnets. So we can call this Miltonic sonnet also, Italian sonnet, Petrarchan sonnet, Miltonic sonnet. These are the same things. Miltonic sonnet is divided into how many parts? Two parts. The first part consists of how many lines? 8 lines, which is called octave. And the second part is sestet. This consists of 6 lines. So the rhyme scheme of the first 8 lines is A, B, B, A, again A, B, B, A. And the rhyme scheme of the second part, which is known as sestet, is in the sonnet C, D, E, C, D, E. So he says, this is on his blindness, and he says, although he had great aspirations in his childhood, he thought that he would become a great poet or a great writer one day, and he had firm faith in God, and he believed that God will encourage him to write something great. He waited for God's commands, but nothing happened, and later on he lost his eyesight, and he thought that I have almost become blind, and I have not achieved. So I have not written anything. I have not written anything great so far. He feels disappointed. He feels as if now he cannot do anything. In the first part of the sonnet, the writer puts the problem forward, and in the second part, that means the sestet, there is a resolution or solution of the problem. The first line of the sonnet is, when I consider how my light is spent at half of my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless. He says कि जब मैं सोचता हूँ, when I think about my eyesight, I consider, when I think how my light is spent, और मेरा तो आधी उम्र बीतने से पहले ही my light has gone, and I am feeling lonely in this dark world, in this wide world. I am feeling alone, helpless. I feel as if I was given a command which I have failed to accomplish. God ने मुझे एक task दिया था. He is a religious person, and he says that God gave me a task to accomplish, and I procrastinated. कल करेंगे, आगे करेंगे, पहले मैं बहुत पढ़ लूँ, हैं? He thought that he would like to read lots of books and epics, all these things, and then start writing. So he feels that before he started doing something serious, his eyesight
is no more. Hmm? Air means before. Half my days in this dark world and wild. And that one talent, और जो एक टैलेंट दिया था गॉड ने, जिसको छुपाना was like death. अब गॉड ने आपको कोई काम दिया है, एंड इफ यू फेल टू अकम्प्लिश दैट टास्क, तो उससे बड़ा पाप क्या है? मौत से भी बड़ा पाप ये है कि गॉड ने आपको कोई काम दिया और आपने वो नहीं किया। तो ये कह रहा है कि वो टैलेंट इज इन कैपिटल, द टी इज इन कैपिटल, सो ए ग्रेट टास्क। वो टैलेंट जो था मुझे एक दिया था, क्या? लिखने का, अच्छा ग्रेट सब्लाइम कुछ लिखने का, विच इज डेथ टू हाइड, लॉस्ड विद मी, यूजलेस, दैट वाज केप्ट विद मी, रिमेन्ड हिडन। कई बार हम कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर कोई टैलेंट तो है, कि जैसे हम कोई कोई म्यूज़िक का हो या पेंटिंग का, ड्राइंग का कुछ टैलेंट होता है, हम सोचते हैं कि जब हम बहुत ही अच्छा कर लेंगे ना, तब हम दुनिया को बताएंगे। तो ऐसा दिन कभी आता नहीं है, एंड दैट टैलेंट रिमेन्स हिडन इन ऑलमोस्ट ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सब यही सोचते हैं कि बेस्ट हो जाएगा ना, तभी दिखाएंगे और तभी लिखेंगे। एक दो लाइन लिखते हैं, उनको लगता है कि जैसा हम सोचते थे वैसा लिख नहीं पा रहे, तो फाड़ के फेंक देते हैं कि हम तो लिखेंगे तो शेक्सपियर से ऊंचा, तभी दुनिया को दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे। तो दैट्स व्हाई ही आल्सो, इसने भी, ही माइट हैव ट्राइड टू राइट डाउन सर्टेन लाइंस, बट ही थॉट दैट ही वुड राइट समथिंग वेरी सब्लाइम, एंड ही वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड कि इंस्पिरेशन उतरेगी गॉड की अचानक रात को 2 बजे, एंड आई विल कंपोज समथिंग ग्रेट। और उसकी मिडिल एज, और फिर उस जमाने में चश्मे तो होते नहीं थे, कैटरेक्ट तो सबकी होता है, आज भी होता है, पहले भी होता था। तो 40-50 की उम्र में दिखाई देना बंद हो जाता था। लगभग हर घर में ब्लाइंड लोग होते थे उस जमाने में, जब चश्मे नहीं होते थे। तो मतलब ज़िंदगी में जो कुछ करना है वो पहले कर लो, 40-50 की उम्र से पहले। पहले ये बुद्धिमानी थी। कई लोग सोचते थे भाई समथिंग ग्रेट, ऐसा कुछ करेंगे दुनिया हिल जाए। दुनिया को हिलाने के चक्कर में वो इंतज़ार करते थे कि कुछ ग्रेट इंस्पिरेशन उतरेगी, और फिर वो उनको दिखना ही बंद हो जाता था, या कोई बीमारियां लग जाती थी, या लाइफ भी बहुत शॉर्ट होती थी उन दिनों। तो वो जो मिशन था वो फेल हो जाता था ज़्यादा लोगों का। ही इज़ ऑल्सो फीलिंग डिस्गस्टेड कि ये क्या कर दिया मैंने तो सारा टाइम वेस्ट कर दिया। दो माई soul more bent to serve their with my maker, वो टैलेंट जो था वो तो हिडन रह गया मेरे अंदर, जो कि मौत के बराबर ही है। मतलब हम जिए जिसके लिए, वो काम हमने किया ही नहीं, तो दैट इज, हम तो और अब कर भी नहीं पाऊंगा, मैं ब्लाइंड हो गया, तो इसका मतलब मेरा जीना ही बेकार गया। लेकिन ये कह रहा है कि हाँ, मेरी सॉल जो है वो गॉड की सेवा करने के लिए, माई मेकर, मेकर का एम कैपिटल है यानी गॉड, उसको सर्व करने के लिए आज भी तैयार बैठा हूँ मैं कोई कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन अब जिस साधन से मैं करता, मुझे दिखाई देता, तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाता। आई कुड हैव डन बेटर अगर मेरे मतलब सारे सेंसेस परफेक्ट रहते, मेरा साथ देते। अब तो मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा भी की भी इच्छा है कि मैं गॉड की सेवा करूं। सेवा कैसे करूं? जो काम मुझे दिया वो करूं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरा जो लेखा जोखा है, जो हिसाब बना के गॉड ने मुझे भेजा, जो प्रोग्रामिंग करके भेजी है, आई हैव बीन प्रोग्राम्ड इन सच ए वे, आई विश टू सर्व द गॉड थ्रू पोइट्री। तो मेरी सॉल तो अब भी चाहती है कि टू सर्व गॉड थ्रू पोइट्री, लेकिन अब वो आई साइट ही चली गई, लाइट ही चली गई, मान लो अचानक ही अंधेरा हो जाए, अब मैं क्या करूं?
लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। क्योंकि अगर मैंने गॉड को सर्व नहीं किया, गॉड की जिस पर्पज से मुझे भेजा था, अगर वो पर्पज मैंने नहीं किया तो ही विल चाइल्ड मी, ही विल रिब्यूक मी, स्नब मी, स्कोल्ड मी व्हेन माय सोल विल रिटर्न टू गॉड, गॉड के पास। तो मिल्टन को ट्रू अकाउंट देना पड़ेगा, भाई मैं गया तो था धरती पर और आपने मुझे टैलेंट भी दिया, मैं लिख सकता था लेकिन मैं टालता रहा, मैं सोचता रहा कि मैं बहुत और अच्छा लिखूंगा तभी लिखूंगा। तो मैं चाहता हूँ, अब भी चाहता हूँ, मेरी सोल ये चाहती है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं गॉड के लिए ताकि मैं रिटर्निंग पे मुझे गॉड की डांट ना पड़े। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट? तो ऐसा हो सकता है क्या कि गॉड ने मुझे काम तो दिया हो लेकिन रोशनी छीन ले? डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड? आई फॉन्डली आस्क। कई बार मैं ऐसे खुद से, कई बार हम गॉड से डाउट करते हैं कि यार गॉड ने ये काम तो दिया है लेकिन परिस्थितियां नहीं दी, तो हम सोचते हैं कि इसका मतलब गॉड चाहता ही नहीं है ना, हम टाल देते हैं उस काम को। ठीक है, उसकी मर्जी। मान लो मुझे बीमार ही कर दे या हैं मेरे हाथ ही छीन ले किसी एक्सीडेंट में, तो मेरे दिमाग में ये आएगा ना कि गॉड ये चाहता था कि मैं कुछ करूं लेकिन हाथ छीन लिए तो अब मैं नहीं करूं, एक बहाना। तो ये थोड़ा सा डाउट मिल्टन के दिमाग में भी आता है। तो ये कहता है फोनली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक कभी कभी खुद से पूछ लेता हूँ कि क्या गॉड ऐसा ऐसी ऐसी शरारत कह सकते हैं या ऐसा काम कर सकता है क्या कि मुझसे काम भी चाहे और परिस्थिति भी छीन ले, लाइट ही छीन ले। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट murmur soon replies। अब अपन वी आर एंटरिंग द सेस्टेड पार्ट ऑफ दिस सोनेट। अब तक तो इसने प्रॉब्लम रखी है कि देखो, आई हैड प्लान्ड टू राइट समथिंग ग्रेट, something sublime in praise of God, but the God has taken light, and I am feeling like I will not be able to do anything now, or I sometimes have doubt about God's intentions, all these things. अब सेस्टेड पार्ट में हम एंटर करते हैं जहाँ पर रिजोल्यूशन या कंसोलेशन। नाउ देयर इज कंसोलेशन। क्या कि मेरा प्रेशेंस जो है ना वो मुझे रोकता है, अरे अरे ऐसा मत सोचो, डोंट थिंक सो, दैट murmurs soon replies। मेरा जो पेशेंस है, कुछ एक हल्की सी आवाज़ है, वो मेरे अंदर से कई बार जवाब देती है। वो क्या कहती है कि भाई ऐसे डरो मत, गॉड को तुम्हारे काम की ज़रूरत है भी नहीं। गॉड को ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान गॉड की तारीफ में लिखे, और अगर नहीं लिख पाए तो गॉड निराश हो जाए। गॉड इज़ ऑलमाइटी, उसको ज़रूरत नहीं है, वो मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है। गॉड इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मिल्टन द पोइट। God does not need either man's work or his own gifts। या इंसान को कोई गिफ्ट दिया, कोई स्पेशल गिफ्ट, कोई आर्टिस्टिक स्किल दिया, कोई क्रिएटिव आर्ट का कुछ दिया, तो गॉड को रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है कि साहब इसलिए नहीं दिया कि गॉड की प्रेज में कुछ लिखे। हु बेस्ट बियर इज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। गॉड का जो योक है, योक क्या होता है? बैलगाड़ी होती है ना, जिसमें बैल के ऊपर वो रखा होता है, दो बैलों के ऊपर रखा होता है, वो योक होता है जिससे वो बैल उसको खींचते हैं बैलगाड़ी को। हल हल भी होता है, हल के भी वो योक होता है उसमें। तो उसका मतलब ये है कि आज्ञा पालन करके काम करते जाना चुपचाप। योक हम सबके ऊपर गॉड ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, हमारी ड्यूटीज़ है कि हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन टास्क को फुलफ़िल करें, उसको कंप्लीट करें।
तो जो गॉड की सबसे अच्छी सेवा करना चाहते हैं वो ये ही है कि जो काम दिया है हमको, हमें महसूस करना चाहिए, आराम से हम पता लगा सकते हैं कि हमें गॉड ने क्या काम दिया है, और उस बेस पर हमें वो काम अकम्प्लिश, वो टास्क अकम्प्लिश करना चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। बस उसका गॉड से शिकायत मत करो, क्योंकि गॉड बहुत बड़ी शक्ति है। ना तो डिसअपॉइंट हो, ना गॉड को क्वेश्चन करो, ना गॉड से शिकायत करो कि भाई मुझे अनलाइन क्यों कर दिया, या मेरे को ये परिस्थिति क्यों नहीं दी, मैं बहुत अच्छा कुछ लिख सकता था, लेकिन पहले मुझे नौकरी देता तो मैं काम लिखता, अब तो मैं नौकरी ढूंढूंगा पहले। आता है ना तुम्हारे दिमाग में कि पहले तो हम नौकरी ढूंढेंगे। ये सब बहाने होते हैं। फिर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो तुम कहोगे कि ज़्यादा अच्छी नौकरी क्यों नहीं दी, हम और भी अच्छी नौकरी मिलेगी तभी करेंगे गॉड का काम। तो है, मान लो तुम्हें कोई अपने फेलो बीइंग्स की हेल्प करनी है, मदद करनी है, या अस्पताल में बाहर जाके कभी ब्लड डोनेट करना है, या फल बांटने, आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, गॉड का तुम्हें लगता है ये आदेश है कि मुझे ये करना चाहिए, तो अगर तुम आदेश महसूस करते, इफ यू डू दैट वर्क, तो यू सर्व हिम बेस्ट। बट इफ यू क्वेश्चन और कंप्लेन दैट we have not got any kind of job for our sustenance, then you are not serving God। तब तुम गॉड की सेवा नहीं कर रहे हो, तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि हमें ऐसा क्यों नहीं दिया, ऐसा परिस्थिति देते गॉड तब हम अपना काम करते, गॉड की सेवा करते, ये अब नहीं करेंगे हम। तो दीज आर एक्सक्यूजेस, ये बहाने हैं जो हमें कुछ भी मिल जाए, जिनको बहुत अच्छी नौकरियां मिल गई वो भी नहीं करते, वो कुछ और बहाने बनाते हैं कि हम बिजी ज़्यादा हो गए, जितनी अच्छी नौकरी मिलेगी उतने बिजी हो जाओगे। फिर तुम कहोगे कि गॉड ने हमें बिजी कर दिया, इसका मतलब गॉड चाहता ही नहीं है कि हम फ्री होकर के कुछ काम करें। दैट मीन्स वी फाइंड एक्सक्यूजेस नॉट टू डू एनी सर्विस टू गॉड। तो ये कह रहा है कि गॉड की सर्विस वही लोग अच्छी करते हैं जो गॉड के माइल्ड योक को उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको बियर करते हैं, और गॉड की जो भी आदेश है, किसान ने बैलगाड़ी चला रहा है, उसने जो बैलगाड़ी चलाने वाले ने जो भी आदेश दिया बैल करता है, वो शिकायत नहीं करता, वो रुकता नहीं है, वो कंप्लेन नहीं। वैसे ही हमें गॉड डायरेक्शन दे रहा है, एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम गॉड। लेकिन हम इतने ज़्यादा रैशनल हो गए, we are so full of doubts about God कि we start questioning his motives, और उसके आदेशों को फॉलो करने के बजाय उसको हम टालते हैं या मना कर देते हैं कि हमें परिस्थिति दी नहीं, इसका मतलब गॉड चाहता ही नहीं है कि हम कुछ करें। His state is kingly, गॉड की स्टेट, गॉड की पोजीशन इज लाइक ए किंग, और वो इतना पावरफुल है कि गॉड को कोई देख भी नहीं सकता, उसने पूरा यूनिवर्स बनाया है, और हम कहें कि हमें तो दिखाई तो देता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे माने कि गॉड है? तो जबकि वो इतना विशाल है, मान लो कोई, हम तो जैसे हमारे सामने बैक्टीरिया है जो हमें दिखाई नहीं दे, हमें बैक्टीरिया नहीं दिखाई देता, और बैक्टीरिया को हम नहीं दिखाई दे सकते क्योंकि उसकी इतनी छोटी आंखें हैं कि, और हम उसके सामने इतने बड़े हैं, है ना? वैसे ही हमें गॉड नहीं दिखाई दे सकता क्योंकि वो हमसे इतना बड़ा है कि बहुत बड़ी चीज़ हमें नहीं दिखाई दे सकती। हमें तो हमारे प्रोपोर्शन में कोई चीज़ होगी तो दिखाई दे जाएगी, लेकिन कोई इतना ही बड़ा हो कि जिससे यूनिवर्स बड़ा बनाया हो, तो इसका मतलब यूनिवर्स से भी बड़ा होगा, तो है ना, इधर मोर्टल आइज से हम गॉड को नहीं देख सकते। लेकिन वो इतना पावरफुल है कि उसके छोटे से आदेश पे थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स फ्ली टू फुलफिल
his orders. उसको हम छोटे छोटे इंसानों पर डिपेंड रहने की, गॉड को कोई इशू ही नहीं है कि भाई वो वेट कर रहा हो कि ये इंसान काम करें तो मेरा काम हो। गॉड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। गॉड और इंसानों का वही रिश्ता है जो हमारा और छोटे छोटे बैक्टीरिया का है। हम किसी बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो हमारा कोई काम करे तो हमारा काम हो। हमें तो पता ही नहीं वो है भी कि नहीं है, कहाँ है, लेकिन वो हम पर जिंदा है। कई बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं, वो हम पर जिंदा है, उनके लिए हम गॉड हैं। लेकिन हमारे लिए वो बैक्टीरिया सब कुछ नहीं है। His state is kingly, thousands at his bidding speed. उसके ऑर्डर्स पे thousands ऑफ एंजल्स हैं उसके पास, जो सारा काम, सारा मौसम चलाते हैं, सर्दी गर्मी है, सारा यूनिवर्स चलाते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। वो एंजल्स, दोज एंजल्स आर पोस्टेड ओवर द लैंड, ऑन द अर्थ, ओशन है और अर्थ एयर वाटर फायर। कौन सी जगह बची? कोई जगह नहीं बची। सब जगह गॉड एंजल्स आर वर्किंग, है ना। और वो इतने क्विक हैं कि गॉड का आदेश होते ही वो तुरंत अपना काम कर डालते हैं। हाँ, दे वर्क विदाउट रेस्ट, उनको रेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। चलो एंजल्स तो सर्व करते ही हैं, वो तो बने ही इसलिए हैं that they should serve God in different ways. इंसान भी सर्व करते हैं, कुछ तो डायरेक्टली अपना काम शुरू कर देते हैं अर्थ पर आते ही। उनको पता होता है कि गॉड ने हमें कोई आदेश दिया है, कोई स्किल दिया है, कोई योग्यता दी है, तो पहले तो हम वो काम करेंगे। योग्यता ना भी दी हो तो सेवा तो हम इंसान की कर सकता है, फेलो बीइंग की, क्योंकि उसको हमारा कोई साथी अगर मुसीबत में है, साथी मतलब दोस्त नहीं, कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसको गॉड ने बनाया है, तो हम उसकी अगर सेवा करते हैं तो गॉड का हम कोई काम करते हैं। तो कुछ लोग तो हैं जो अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इंतजार कर रहे हैं, स्टैंड हैं, खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। सेवा कौन नहीं कर रहे हैं? जो शिकायत कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा क्योंकि गॉड मौका नहीं दे रहा, या हमें परिस्थिति गॉड ने नहीं दी तो हम क्यों करें। वो लोग गॉड की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको हिसाब देना पड़ेगा। जो वेट एंड वॉच करते हैं, जो स्टैंड एंड वेट करते हैं, आज नहीं तो कल गॉड आदेश करेगा, हम करेंगे। यह हम सीख रहे हैं, वी आर इम्प्रूविंग आवर स्किल्स, है ना। और एज सून एज वी become accomplished in that skill, we will start our work, like writing poems or music, है ना, composing music, anything। हम कई तरीकों से गॉड, हम दुनिया को बेहतर बनाकर गॉड की जो है हेल्प कर सकते हैं। गॉड ने दुनिया बनाई है और हमको सौंप दी। नाउ दिस इज आवर ड्यूटी टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल। अब हम अगर मान लो कि डिसअपॉइंट हो जाए कि हमें परिस्थितियाँ नहीं मिल रही या हमारा समय खराब चल रहा है, क्योंकि गॉड ने हमारा समय खराब कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव बिकम होपलेस। और डेस्पेयर इज ए सिन इन क्रिश्चियनिटी। डेस्पेयर यानी आप उम्मीद छोड़ दो, तो क्रिश्चियनिटी में उसको 7 डेडली सिंस में ये डेस्पेयर भी, निराशा भी, हताशा, होपलेसनेस एक सिन है। गॉड में फेथ छोड़ दिया ना तो वो सिन है। इसलिए शुरू में मिल्टन को बीच में डाउट हुआ। इस सोनेट में हम देख रहे हैं ही स्टार्ट्स डाउटिंग इन गॉड्स इंटेंशंस, क्वेश्चनिंग गॉड्स इंटेंशंस, बट इमीडिएटली ही सेज कि नहीं, गॉड के प्लान्स
मिस्टीरियस हैं, और वो किंगली है, वो इतना बड़ा राजा है दुनिया का कि हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, और वो हम पर डिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम अपना योग जो हमें जो कमांड दिया हुआ है, हमको मोडेस्टली, हमको बहुत विनम्रता पूर्वक उन कमांड्स को पूरा करना है और अपने मिशन पर लग जाना है। दुनिया को बेहतर बनाना है या खुद के थ्रू दुनिया को बेहतर बनाना है। हम अपने आप को बेहतर बनाने लग जाएं, कोई स्किल हमें दिया है उसको इम्प्रूव करें, कुछ भी करें, हम अपने आप को बेहतर करेंगे तो दुनिया को हम बेहतर करने में एक कदम आगे जाएंगे। और फिर दूसरे तरीके से दुनिया को बेहतर हम कर सकते हैं। हम प्लांटेशन, हम सफाई, हम दूसरे लोगों की मदद, है ना, दूसरे लोगों से अच्छी तरीके से बात, कई तरीके हैं जिससे हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। तो ये मिशन एक ये चलता रहता है। तो मिल्टन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मिल्टन वॉज ए प्यूरिटन पोइट। वैसे तो पोइट्री एंड प्यूरिटनिज्म आर द पोल्स अपार्ट। कॉमनवेल्थ के टाइम में, यानी 1640 से मान लेते हैं हम, और 1660 तक कॉमनवेल्थ यानी रिलीजियस स्टेट इंग्लैंड हो गया था। ऐसा समझ लो जैसे आज का अफ़गानिस्तान, जहाँ पर तालिबान का रूल है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक बिल्कुल स्ट्रिक्टली रिलीजियस हो जाए। और मतलब वो फैनेटिसिज्म की हद तक क्या इतने नैरो माइंडेड हो जाते हैं, जो जितनी भी कट्टरता बढ़ती जाएगी वो हमें बहुत फैनेटिक बनाती है, हमारे अंदर नफरत पैदा करती है, हमें नैरो माइंडेड बनाती है। तो कॉमनवेल्थ के टाइम उसको प्यूरिटन एज कहते हैं। प्यूरिटन मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ रिलीजन। तो ये मानने लगे कि जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं जो कट्टर होते हैं, वो आर्ट को अपना दुश्मन मानते हैं। लिटरेचर है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, इन चीज़ों को वो मानते हैं कि ये सेल्फ इंटेलिजेंट बनाते हैं या ये एक लग्जरी है। आर्ट क्या है, वो झूठ बोलते हैं, पोइट झूठ बोलते हैं, ये राइटर्स झूठ बोलते हैं। ये लिखते हैं एक राजा था, एक रानी थी, उनके ये हुआ, वो हुआ, ये जबकि हुआ कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं हुई। और ये झूठ मूठ कहते हैं कि ऐसा हुआ और पब्लिक मान लेती है उनको। या वो कहते हैं कि ये टाइम आप क्यों वेस्ट करते हैं, कुछ ड्रामा आप देखने जा रहे हैं या म्यूज़िक में लगे हुए हैं, आपने क्या हासिल किया। उनको लगता है कि ये समय का वेस्ट है। अब आप चाहे कहीं भी, किसी भी कंट्री में जहाँ पर रिलीजियस स्टेट है, वहाँ यही हालत मिलेगी। पब्लिक खुद ये डिमांड करती है स्टेट्स में, जब बहुत ज़्यादा लग्जरी आ जाती है, लग्जरी के साथ लग्जरी की खामियां आती है, लग्जरी की बुराई आती है, प्रॉस्पेरिटी की जो बुराई आती है, तो फिर पब्लिक को ये महसूस होता है कि नो 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 नो, दिस इज़ नॉट राइट, वी शुड बी रिलीजियस, हमें रिलीजियस होना चाहिए। और पब्लिक मांग करती है कि नहीं 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 नहीं, प्यूरिटन हमें होना चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ रिलीजियस में जाना चाहिए, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, है ना। हर रिलीजन में एक बहुत बड़ा तबका ये होता है जो वो कहता है कि हमारे धर्म का स्टेट बनना चाहिए, जिसमें हमारे धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। और हर धर्म में आप देखोगे कि वो आगे जा कर के वो संकीर्ण होते चले जाते हैं। धर्म तो नहीं कहता, लेकिन लोग संकीर्ण होते चले जाते हैं और फिर अपने ही साथियों को पे बंदिशें लगाने लगते हैं कि वो, जैसे ईरान में बहुत प्रोस्पेरिटी थी, ऑयल निकला, बहुत पैसा आया, है ना, गल्फ कंट्रीज में पैसा आया तो नाच गाने, थिएटर, मूवीज, लग्जरी, और उसके साथ उसकी बुराइयां भी आई। तब लोगों को लगा कि नो नो नो, पैसे ने तो हमें बहुत नीचे स्तर पे गिरा दिया। तो उन्होंने डिमांड की, आंदोलन किए, महिलाओं ने आंदोलन किए कि हम हिजाब पहनेंगे, हम बुर्का पहनेंगे, और पुरुषों को भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए, और हमें, है ना, पूरा प्योर धार्मिक इस्लामिक रूल से ये देश चलना चाहिए।
जब उन्होंने बहुत मांग की, ठीक है, एक आंदोलन हुआ और वहाँ इस्लामिक स्टेट बन गया। फिर सबसे पहली शिकार महिलाएं हुई, है ना, उन पे रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा लगाए गए, फिर पुरुषों पे लगाए गए, फिर बंदिशें बढ़ती बढ़ती बढ़ती, अंत नहीं होता, सारी लग्जरी पर, और कठोर न्याय व्यवस्था, हर चीज़ पे मृत्युदंड तुरंत। इसका नतीजा ये हुआ कि महिलाओं ने ही फिर डिमांड करना शुरू किया। एंटी हिजाब मूवमेंट आजकल ईरान में चल रहा है कि वो कह रही हैं हम बुर्का नहीं पहनेंगे, हमारे ऊपर बंदिशें हैं, हमारी एजुकेशन पर बंदिशें हैं, है ना। भाई महिलाओं को ज़्यादा एजुकेशन नहीं, जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान में महिलाओं को जो कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, बिगड़ जाती हैं, ये होता है, सब तरह की बंदिशें लगा दी। नतीजा क्या हुआ कि महिला डॉक्टर नहीं है। अब महिला पेशेंट को महिला डॉक्टर नहीं देखेगी तो फिर उनको दिक्कत होती है। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन खुद की बातों में हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं अब कहाँ से लाएं, और फिर इतनी बंदिशों से फिर आंदोलन होते हैं वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर भी थिएटर वगैरह पे बैन लगा दिया था प्यूरिटन टाइम में, म्यूज़िक पे बैन, पेंटिंग पे बैन। लेकिन आर्ट के बिना इंसान रह नहीं सकता। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स? ह्यूमन बींग्स थोड़े से सुपीरियर टेस्ट होते हैं, एनिमल्स तो क्या है, केवल खाना। व्हाट कैन दे डू, हाउ कैन दे एंजॉय लाइफ? उनका कोई आर्टिस्टिक टेस्ट तो होता नहीं कि वो लिटरेचर पढ़ें या म्यूज़िक सुने या पेंटिंग करें, उनका कोई टेस्ट नहीं है। तो रिलीजन हमें पशु बना देता है एक स्टेज पे जाके, जब वो हम, मतलब रिलीजन तो नहीं बनाता, हमारे रिलीजियस जो लीडर हो जाते हैं ना। तो मिल्टन एक प्यूरिटन साइड का पोइट था, लेकिन ही हिमसेल्फ कुड नॉट लिव विदाउट पोइट्री एंड स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स। और उसने एपिक लिख डाला, सोनेट्स लिख डाली चुपचाप, भले ही गॉड के बारे में लिखी, लेकिन नियम तो तोड़ ही दिया उसने। इस तरह से बहुत सारे राइटर्स ने चुपके चुपके, बहुत सारे लोगों को जेलों में डाल देते हैं, जेलों में लिख लेते हैं। आप कैसे रोक पाओगे आर्टिस्टिक क्रिएशन को? ये एक सुपीरियर हमारा इंटरेस्ट होता है ह्यूमन बींग्स का। तो मिल्टन एक ग्रेट पोइट था, और उसने गॉड पर फिर पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, ये बहुत अच्छे एपिक्स लिखे और बहुत पॉपुलर लिखे। आज भी मिल्टन सबसे पॉपुलर पोइट्स में से है, जबकि पोइट्री पर बैन था, और बैन लगवाने वालों में ये भी एक था। तो मिल्टन की 2 सोनेट्स हैं। सोनेट्स के बारे में मैंने बता दिया। ये पेट्रार्कन या इटालियन फॉर्म में लिखता था। तो शेक्सपियर पॉपुलराइज्ड इंग्लिश सोनेट, तो उसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कह देते हैं, क्योंकि इंग्लिश मतलब शेक्सपियर ने इतना पॉपुलर बनाया। और पेट्रार्कन सोनेट वर्ड्सवर्थ है, मिल्टन है, इन राइटर्स ने पेट्रार्कन इटालियन स्टाइल में लिखा, तो मिल्टोनिक सोनेट हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से आपने आज की ये हमारी सोनेट होती है।